Hello friends, welcome back. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about consistency of soil in detail. And secondly, we will solve numerical questions which had been asked previously in exams like GATE, Engineering Service, that is ES. And so we need to understand firstly what exactly consistency means, and then we will discuss about what is shrinkage limit WS, what is plastic limit WP, and what is liquid limit WL using through this diagram. So we need to understand this diagram as well. So firstly, what is consistency of soil? So consistency means firmness, or we can say the rigidity of soil, the solidity of soil, okay? And strength, we can say the strength of soil as well, right? So consistency means firmness, हमारी soil कितनी hard है, कितनी मजबूत है, ठीक है? और we can say the strength of soil, हमारी soil की strength कैसी है, ठीक है? वो consistency represent करता है. So consistency represents strength of soil or firmness of soil. Right now the question arises that why we study consistency? Because we study consistency when soil comes in contact with water, or we can say moisture, its behavior changes. जब soil contact में आ जाती है moisture के, तो उसका behavior change होता है. Suppose our soil is in solid state, so we can say the moisture is very less in soil, because when soil comes in contact with water or moisture, the soil behavior changes. It starts like softening, ठीक है? वो उसकी फर्मनेस खत्म हो जाती है. द फर्मनेस ऑफ सॉइल रिड्यूस ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन ऑन सॉइल. सो यहाँ पे सॉइल सॉलिड स्टेट पे है. तो यहाँ पे इस फिगर में आप समझिए, इन दिस फिगर हियर इन एक्स एक्सिस W इज वाटर कंटेंट एंड हियर वॉल्यूम. इन दिस यहाँ पे वाई एक्सिस में हमारा वॉल्यूम शो कर रहा है कि जब वाटर कंटेंट इंक्रीज होता है तो सॉइल का वॉल्यूम कितना कितना चेंज होता है. तो फर्स्टली यहाँ पे हमारी सॉइल सॉलिड स्टेट में है, सॉइल इज इन सॉलिड स्टेट, एंड हियर WS is the point, or we can say WS is a point where moisture is equivalent to WS. WS is a shrinkage limit. So shrinkage limit is a water content corresponding to soil at solid state. Secondly, when water content increases this limit, this shrinkage limit, then the soil is no more in solid phase now. So soil क्या होती है हमारी, semi solid बन जाती है, ठीक है? Or we can say shrinkage limit is a water content, or we can say shrinkage limit is a maximum water content above which soil is no more in solid state. Or we can say shrinkage limit is a minimum water content at which soil behaves like semi-solid. That is the exact definition of the shrinkage limit WS. ठीक है? Secondly, when water content increases, so it becomes here in this point WP. So this limit of water content is called plastic limit. At plastic limit, the soil behaves starting like plastic. So it is a minimum water content at which soil is in plastic state. ठीक है? तो ये minimum water content है जहाँ पे soil plastic की तरह behave कर रहा है. और उसके बाद जब moisture content और increase हो जाता है, volume तो increase होता है साथ साथ में, ठीक है? Volume also will increase when water content increase. Now when water content increases beyond WP, so till this point WL, this is called liquid limit. At liquid limit, water starts behaving like liquid. ठीक है? तो इट्स, वी कैन से द लिक्विड लिमिट इज अ मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक सीमेंट, और वी कैन से लिक्विड लिमिट इज अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिक्विड. ठीक है? तो ये जो WL है ना, ये मिनिमम है प्लास्टिक फेज में, और मैक्सिमम है प्लास्टिक स्टेज के लिए, और मिनिमम है किसके लिए, लिक्विड स्टेज के लिए. तो ये था ऑल अबाउट श्रिंकेज लिमिट. तो मैं यहाँ पे मैं श्रिंकेज लिमिट के लिए थोड़ा लिखता हूँ. WS इज ए श्रिंकेज लिमिट. Shrinkage limit, right? So shrinkage limit, I told you what exactly shrinkage limit is. It is a water content at which soil starts behaving like semi-solid, or we can say it is a maximum water content at which soil is in solid state. So it's maximum because after this point soil becomes semi-solid. Next, WP, it is liquid plastic limit. प्लास्टिक लिमिट, ठीक है? ये प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस ऑल श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, ये सारे क्या है, ये सारे वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? एंड थर्डली हमारे पास है WL. WL इज ए लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल. सो अब मैंने आपको डिफिनेशन बताया. सो एट लिक्विड लिमिट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस शार्पली.
ठीक है, रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉइल हमारी फ्लो करती है पानी की तरह, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेज। और यहाँ पे हमारी सॉइल ना प्लास्टिक की तरफ बिहेव करती है। इन दिस स्टेज द सॉइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर आई विल मेंशन यू, यहाँ पे जो डिफरेंस हम लेंगे, हियर द मॉइस्चर कंटेंट इज 0, सो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू WS, WP, WL, right? So moisture content increases in this way. And secondly, WP and WS, the difference between WP and WS, what will be the difference? So WP minus WS is called IS, that is shrinkage limit, sorry, shrinkage index. I will write here. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। सपोज द लिक्विड लिमिट इज 20%, सो प्लास्टिक श्रिंकेज लिमिट शुड बी लेस देन 20 बिकॉज इट इज हियर, सो इट इज लेस देन WP. WP is somewhere here and WS is somewhere here, so WP should be less than, suppose we take WS is equal to 5%. So what will be shrinkage index? IS equivalent to 20% minus 5%, that is 15% is the shrinkage index. So next I will tell you here this difference, I'm sorry, so here this difference WL minus WP, I will write here WL minus WP, this difference is called IP, plastic index. Very important, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. सो IP इज अ डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. ठीक है, सपोज हमारा WL इज वी टेक 30% and WP we know we take 20%. So 20 minus IP should be equivalent to 30 minus 20, that is 10%. What is 10%? Or IP, plastic index. So these are very important things you should need to kept in your mind. So ये था हमारा कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, और आपको समझ भी आया कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है और लिक्विड लिमिट क्या होता है. अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स व्हिच हैड बीन आस्क्ड प्रीवियसली इन गेट. सो ये क्वेश्चन गेट पे आया था. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया है ताकि आप इस टॉपिक को इजीली ना लें, क्योंकि ये गेट में आए हैं और 2 नंबर का आया हुआ है. ठीक है, तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट और ईएस में, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से सारे क्वेश्चन लाऊंगा. बट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मैंने लाया है. सो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा. तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लिक्विड लिमिट WL और वी कैन से लिक्विड लिमिट LL is called liquid limit as well, or we can represent liquid limit as WL. Plastic limit WP and shrinkage limit WS of a cohesive soil satisfy the relation. तो कौन सा रिलेशन ये यहाँ पे satisfy होगा, ठीक है, सॉइल के लिए. तो यहाँ पे आप पढ़िए, ये बोल रहा है जो लिक्विड लिमिट ये ग्रेटर है प्लास्टिक लिमिट से और प्लास्टिक लिमिट लेस है श्रिंकेज लिमिट से. आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा अपने जहन में फिक्स करना. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 होता है मॉइस्चर कंटेंट और यहाँ से मैक्सिमम होता है. तो लिक्विड लिमिट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक लिमिट. तो लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किससे ग्रेटर है, श्रिंकेज लिमिट. सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन plastic limit and plastic limit is greater than shrinkage limit. So shrinkage limit represents least moisture content and plastic liquid limit represents maximum water content. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ऑफ गेट 2008. Now we will discuss another question that had been asked in ES 2017. So ये क्वेश्चन क्या था, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा. तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एट श्रिंकेज लिमिट WS सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड. सेकंड स्टेटमेंट है मोंट मोरेलोनाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपेंसिव. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए. ठीक है, एट श्रिंकेज लिमिट WS soil is fully saturated. S होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, S is डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स. हमारे सॉइल में वाइड्स होते हैं, उसमें कितना पानी है. ठीक है, वही रिप्रेजेंट करता है हमारा श्रिंकेज लिमिट. तो ये हमेशा परसेंटेज में होता है. तो एट श्रिंकेज लिमिट
एट श्रिंकेज लिमिट WS सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा पानी बहुत यहाँ कम था, तो यहाँ से पानी इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे सॉइल फुली सैचुरेटेड बन जाती है। ये हमेशा अपने जहन में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इसके बेसिस में ES में और गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रिंकेज लिमिट बराबर होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, और यहाँ पे सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है, ठीक है। तो सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। मोंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल आर नॉन एक्सपेंसिव। ये तो ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में एक्टिविटी ऑफ सॉइल में, आप वो देख लेना कि एक्टिविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ IP अपॉन परसेंटेज लेस देन फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिविटी का मतलब हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, H2O वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये होता है एक्टिविटी। तो इसकी एक्टिविटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, 4 से ज्यादा थी, ग्रेटर देन 4। सो मोंटमोरिलोनाइट इज ए क्ले मिनरल विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ स्विवलिंग एंड श्रिंकेज। तो ये एक्सपेंड होता है, तो इट इज वेरी प्रोन टू वॉल्यूम चेंज व्हेन इट कम कंटैक्ट टू वाटर और मॉइस्चर। सो दिस स्टेटमेंट इज गलत, स्टेटमेंट नंबर 2 is wrong and statement number 1 is correct. So you can decide which option is correct. ठीक है। होप गाइस आपको समझ आया होगा जितना भी मैंने समझाया कंसिस्टेंसी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इजी वे में नहीं लेना, अच्छे से समझ जाना। अगर समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को प्ले करना, अच्छे से समझना। तो इस वीडियो को यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया कंटेंट लेके जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहना। Take care.